ٹھیک ہے نا جی. لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ تفصیلاً بات ہوگی تو ہم آپ کو اس پر اپنا جو ٹیکنیکل اور مفصل جواب ہے اور اعتراض ہے اس سے ضرور آگاہ. آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ معیشت زیادہ اہم ہے الیکشن سے، اور بلاول صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے. آج سی کی میٹنگ میں زیادہ کس کی طرف رجحان تھا؟ آصف زرداری صاحب کے موقف کی تائید کی گئی یا بلاول صاحب کے موقف کی تائید ہوئی آج سی کی میٹنگ میں؟ دیکھیے یہاں پر اس طرح کا کوئی کھیل نہیں کھیلا جاتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کارکن کو بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے، اور جو ہمارے آفس بیئررز ہیں، جو لیڈرشپ پوزیشنز پہ فائز ہیں لوگ، ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ جو فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہوتا ہے وہی فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو پیشن گوئیاں تھیں کہ زرداری صاحب سی سی میں ہیں یا بلاول صاحب کون ہیں، تو دونوں حضرات سی سی میں موجود ہیں، اور پچھلے سی سی کی طرح اس سی سی کی بھی صدارت دونوں ہمارے معزز لیڈران کر رہے ہیں. شادیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ صدر مملکت درمیان کی گیم کھیل رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے، اس میں پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے اختیارات دینے میں. دوسری جانب اگر صدر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور صدر صاحب کو بھی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، تو کہیں آپ لوگ بھی درمیان میں ایک طرف 90 روز کا یہ مطالبہ، ایک طرف الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے. 25 اگست کی میٹنگ میں آپ لوگوں سے، آپ کی تمام جو دیگر ساتھی ہیں کراچی میں، جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے باقاعدہ اس بات کو شیئر کیا کہ جی ہماری سی سی کے اندر جو قانونی رائے آئی ہے اور جو ہمارے اراکین نے بات کی ہے، اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی ہے. تو یہ ہم نے پچھلی میٹنگ میں بھی کہا تھا. اور آج اگر کوئی اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرے بھی تو ہمیں اس کو یہ جواب ضرور دینا میرا فرض ہے کہ جی ڈیٹ کون اناؤنس کرتا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بحث نہیں ہے. ہماری بحث اس وقت ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو. یہ غیر یقینی کی صورتحال، اس سے ملک نکل سکے، ہمارے لیے ایک وے فارورڈ نظر آئے. معیشت بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، سیکیورٹی بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور لوگوں کی رائے بھی ہمارے لیے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ معیشت ضروری ہے، بلاول صاحب کہتے ہیں ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے. اس الیکشن ایکٹ کے اوپر آپ نے ووٹ کیا، پھر آپ کے بخاری صاحب کہتے ہیں صدر کو اختیار ہے. اس حوالے سے وہی ڈبل گیم آپ کر رہے ہیں، عوامی سطح پہ کوئی اور ہے، اور اندر کھاتے مسلم لیگ نون کا بھی یہ الزام ہے کہ آپ کو پتا تھا الیکشن 90 روز سے آگے جائیں گے اور آپ نے اس کو ووٹ بھی کیا تھا. دیکھیے میں اس بحث میں نہیں جاتی ہوں. مسلم لیگ نون الزام تراشی کرتی رہے، یہ پھر میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کس سطح پہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بات سینسس کی پوری کہانی سی سی آئی کی شروع کریں گے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر اس سینسس سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر اگر سینسس کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ آتا جس سے کہ الیکشن افیکٹ ہوتا تو یہ بریکنگ نیوز ہوتی. ایک سیکنڈ تو یہ بریکنگ نیوز ہوتی. اور تھوڑی بہت میں نے آئین کی کتاب پڑھی ہے، اور جب وہ بریکنگ نیوز ہوتی تو آرٹیکل 51 میں تبدیلی آتی، اور اگر آرٹیکل 51 میں تبدیلی آتی تو آئینی بحران آتا، اور اگر آئینی بحران آتا تو آپ سب کو پتہ چل جاتا. لیکن چونکہ کوئی آئینی بحران نہیں آیا، اور آج اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دانست میں یہ مدعا اہم ہے کہ ڈی لمیٹیشن کرانی ہے، تو ہم اس میں یہ اعتراض اب نہیں ان کے ساتھ ضد نہیں لگا رہے، ہم کوئی ضد نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈی لمیٹیشن، بلکہ کل زیادہ کلیئر ہو جائے گی، لیکن جو ابھی سرسری باتیں ہیں کہ اگر ڈی لمیٹیشن بھی ضروری ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی پروویژنز کلیئر ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی بطور الیکشن کمیشن پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری جو کہ الیکشن کرانے کی ہے، شفاف الیکشن کرانے کی ہے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی ہے، اس ایکسرسائز کو مکمل کرتے ہیں ڈی لمیٹیشن کرا کے اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، تو آپ بے شک کریں. اور ہمارے فیصل کریم کنڈی صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملے. یہ ہماری ہی اس ڈائلاگ اور ان کے ساتھ ایک گفت و شنید اور انگیجمنٹ کا نتیجہ تھا
कि डिलिमिटेशन की वो जो एक लंबी डेट्स दी गई थी उसके पीरियड को 2 हफ्ता कम किया गया। तो हम अभी भी पुरुम्मीद है कि कोशिश यही की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराएं। वायलेशन में हम जितना जाएंगे आइन के, ये गलत प्रेसिडेंट सेट होता जाए। क्या लतीफ मोहसिन साहब को इजलास में बुलाया गया और साथ आपने उसको नोटिस भी जो जारी कर दिया और इख्तियार से सब शरीक हुए कि नहीं? आप जवाब दे दें नोटिस का, आ जाए। बिल्कुल जी, लतीफ़ कोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज़ साहब को भी दावत की। लतीफ़ कोसा साहब को हमने पार्टी से निकाला दिया, शोकास नोटिस से जवाब तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं, दोनों हमारे मुख्तला साहबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे साथ अपडेट भी किया हमें, और उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज दोनों जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो जब वो लतीफ़ कोसा साहब इसका रिप्लाई करेंगे शोकास नोटिस का, उसके बाद ही कोई चीज़। लेकिन आज की दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत। मैडम ये बता दें कि मैडम ये बता दें कि वो पंजाब की आपकी जो है वो ओहदेदारान मौजूद थे और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो 14 मई वाले इलेक्शन थे तब भी हम नून लीग को कहते रहे करवा दो, उन्हें अपने केसेस ख़त्म करवाने की पड़ी। तो आप इस मौके पर क्या उनकी तायीद करती हैं? क्या ऐसे फैसले, ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े टिकट होल्डर, इनके हाथ में भी टिकट था पंजाब के हवाले से। हमारी अलबत्ता देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज़ में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन जो है वो हम आएंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज़ ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी, जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की एक कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करे, ये हम आएंगी के साथ हो। और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में, जिसके अंदर अपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त PTI भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो 1 रोज़ होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त PTI की जानिब से मैं ना मानूं की सियासत शुरू हो गई और उनका जो ज़िद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार, नफरत और तकसीम फैलाई है, उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। अच्छा, अगर उस वक्त नहीं हुआ तो चले दीगर लोगों को राज़ी कर लें, जिसमें नून लीग, मौलाना साहब और भी लोग हों। तो सब ने मिलकर ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हो और 1 तारीख को इलेक्शन किए जाएं। आज की भी हुकूमत शायद यही बात कर रही है कि पूरे मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। हमारी कोशिशों के नतीजे में और डायलॉग के नतीजे में यही बात हुई। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी एक जमात की इस तनकीद पर रिएक्ट करूँ कि जी शुगर का क्राइसिस पीपल्स पार्टी का ज़िम्मा था, तो फिर ये इसलिए नामुनासिब होगा कि अगर मैं फिर ख़जाने की बात पूछने आ जाऊं, मैं अगर स्मगलिंग के ऊपर बात पूछूं, मैं अगर सिक्योरिटी पे पूछूं, मैं अगर एनर्जी पे पूछूं, तो ये किसके पास था? तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं अपने चेयरमैन की उस ख्वाहिश और उस विजन के ऊपर चल रही हूँ कि जी इस मुल्क में हर एक को इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है और हम सबको डालना है। मैडम, बात ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये इल्जाम है कि निगरान हुकूमत के जरिए नून लीग को सहूलतकारी की जा रही है। निगरान हुकूमत के जरिए पंजाब के रहनुमाओं का आए रोज यही इल्जाम है कि निगरान हुकूमत वफाक में और जो पंजाब में वो सहूलतकारी कर रहे हैं नून लीग की। इस पर फैसल साहब जवाब देंगे और आप सबको ऐड किया गया निगरान कैबिनेट में।
आ जाए। देखिए आपने जो बात की है कि हमारी इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तहफ़्फ़ुज़ात किए, देखें उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है, और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है, और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए, वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है, जबकि नहीं हो सकती। हम जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। हमारे पार्टी के दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे, वो अभी भी उन्होंने हमें कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग दी है, कुछ पे देनी है। जैसी ब्रीफिंग सारी मुकम्मल होती है, कल आपको इस पे इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल जो है उस पर अपडेट कुंडी करेंगे। साहब मेरी गुजारिश आपसे, कुंडी साहब गुजारिश एक के साथ बात नहीं आपने वादा किया था कि मैं खवातीन से ले लें, खवातीन से ले लें। इस मुतालबे को मायरा, आप के इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेहाद होना चाहिए। आप करो बेटा, करो। मायरा, आप सवाल करो, आप सवाल करो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पीटीआई से इत्तेहाद हो जाए। बेटा पूछे आप सवाल। शादिया मरी साहबा, ये बता दें, आप भी जानते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की साख बहुत ज्यादा कमजोर है, और ये पीपल्स पार्टी के पास क्या ये आखिरी चांस है दोबारा से रिवाइव करने का, और किस बुनियाद पर आप ये समझती है कि पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी का साथ दे? देखिए मेरी बहन, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, फ़लसफ़ा कमज़ोर नहीं होता, आइडियोलॉजी कमज़ोर नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े पर चलने वालों को ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और अगर हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी, और हमें जो पंजाब के साथी बता रहे हैं यहाँ हो रहा है, या जो हमें केपी के साथी बता रहे हैं कि वहाँ हो रहा है, और फिर सिंध की भी आपको अभी कुंडी साहब ने बात की, तो ये जब तमाम जो ज़्यादतियाँ पीपल्स पार्टी के साथ दिख रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं और नज़र आ रही है, ये ख़त्म होंगी तो फिर अपने फ़लसफ़े पर बात होगी ना, फिर मैनिफेस्टो पे बात होगी। मैं एक कुंडी साहब की बात को बढ़ाते, भाई आपने किया सवाल, एक सेकंड मैं सिंध के हवाले से, क्योंकि मैं अभी अपने हलके में थी, आप यकीन करें कि वहाँ पर बच्चियों का स्कूल बन रहा था जिसका काम रोक दिया गया। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल बनाया कि जी जो तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सैलाब ने मुतासिर किया लोगों को, फिर साउथ पंजाब, केपी का कुछ एरिया, गिलगित का कुछ एरिया, लेकिन आप लोग गवाह हैं कि आपने खुद देखा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन सिंध की अफेक्ट हुई है। पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। पूरी दुनिया ने हमारे साथ आगे आकर इजहार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं किस को इस तरफ उनकी अटेंशन उन्होंने राग़िब की, बावजूद इसके कि दुनिया के और भी मसले चल रहे थे, लेकिन हमारा मसला हमारे लिए सबसे बड़ा था। और आज अपने ही लोग, अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही सूबे में बैठे लोग, अपने ही सूबे के लोगों की तरक्की को रोक रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है। ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उन्होंने अभी हमें कह दिया है कि जी 15 अगस्त तक हुआ होगा तो आप करा लें। मतलब ये हंसी की बात है ना कि ये पिछली गवर्नमेंट की मंजूर करता है। केयर टेकर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के फैसलों को अंडू कैसे कर सकती है? ये तो आप लोग भी माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं कि ये रिवर्स कैसे हो सकती है बातें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है इन चीज़ों पर? और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी बड़े एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सकते ट्रांसफ़र पोस्टिंग, कानूनी तौर पे वो नहीं करा सकते। शायद कोई कानून उनके पास हो जो वो जिसको देख के काम कर रहे हो, लेकिन जो कवानीन हमने पढ़े हैं उसमें तो हमारे अरकान ने इस बात का तस्करा किया है, बड़ा ज़ोर शोर से किया है कि जी ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए, इसे चलने दें। पीपल्स पार्टी कभी एतराज़ नहीं करती। अगर कानून वायलेट होता है तो करते हैं, आइन वायलेट होता है तो करते हैं, अदरवाइज हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी किसने इस मुल्क के अंदर? सबसे ज़्यादा लाशें पीपल्स पार्टी ने उठाई हैं। पंजाब के मामले में एक सेकंड नहीं, मैं पंजाब के मामले में आपने खास तौर पे एक सवाल किया था कि पंजाब में आपका रिवाइवल कैसे होगा। पंजाब ने तारीख में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन देखी,
अपोजिशन बर्दाश्त की। अपोजिशन के सामने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जला कारकुन बिल्कुल डट के खड़ा रहा। लेकिन ये जो अपोजिशन जो इस वक्त की हमें सहनी पड़ रही है, आप 100% आपकी जो फीलिंग है वो बजा है। हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। इतनी मुश्किलात नून लीग के होते हुए नहीं थी, इतनी मुश्किलात हमारी PTI के होते हुए भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैम शादिया ने जिस तरह से कहा है कि जी नज़रिया उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकता। ना ये ख़त्म हुआ, ना इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होगा। आप देखिएगा कि जिस दिन ये लीडरशिप पंजाब में भले पेशावर से लेके इस तरफ को एंटर करे या साउथ से लेके लाहौर की तरफ एंटर करे आपका फिर पीपल्स पार्टी, आपने लॉन्ग मार्च में नहीं देखा था कि पंजाब की आवाम का क्या रद्द अमल था अपने चेयरमैन को देख के, क्या बिहेवियर था, क्या जोश और जज्बा था। तो वही जज्बा आज भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के इलेक्शन, अगर हम मजबूत ना होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मुतालबा ना कर रही होती कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए। बस मेरा ख्याल पीछे हो जाए यार, पीछे। एक्चुअली है ना, इनने नहीं पूछा, कोई ऐसी बात नहीं, इन्होंने नहीं शादी पूछा। में भी कोई ऐसी बात नहीं। वैसे अच्छा। क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं या इलेक्शन को मुकम्मल इल्तवा में डालना चाहते हैं? क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स एक्टिव हैं और क्या कोई पॉलिटिकल फोर्सेस उनके साथ हैं? अगर कुछ ऐसे रिजर्वेशंस हैं तो क्या वो मीटिंग में डिस्कस हुई है? जी डिस्कस हुए हैं और कल हम उसमें तफसीली बताएंगे आपको। ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और भी हो रही है, हम कल सारी आपको लास्ट बताएंगे। क्वेश्चन है, लास्ट कल तफसीली तू मैनू पूछ ले बात। क्योंकि इनकी कबीना में मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता अरकान की ज़ाती मुलाजमों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरह फवाद की नई इंडक्शन हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इन सब चीज़ों पे तफसील से जो है हमारी बातचीत शुरू है। आज भी हुई है, कल भी होगी और कल जो हमारी तफसीली ब्रीफिंग होगी उसमें इसका जिक्र करेंगे। आपने सवाल किया पार्टी के हवाले से, अभी तक हमें ऑफिशियली कोई भी ऐसी दावत नहीं आई। जब ऑफिशियली दावत आएगी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले में शहरी काउंसिलेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, हम इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करते हैं। जब भी कोई दावत आएगी हमारी पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर देखेगी और उसके बाद भी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।